Hi, this is Ruchika here, and in this video, I will be discussing about the next topic of your chapter 1 of environmental education, that is your causes and consequences of environmental degradation. This is the last topic of your unit 1. So, I will be discussing about the meaning of environmental degradation, causes of environmental degradation, consequences of environmental degradation. So as we have already discussed about that, we are using natural resources in such a way that it is not going to be left for our future generation. Because of the unlimited, I can say, because of the unlimited exploitation of nature by us, our ecological balance between biotic and abiotic things of biosphere are disturbed, and this adverse condition which is created by us only, it's a threat for our survival. So due to progress in industries, technology, the quality of environment जो है it's deteriorating in one way or the other. So when the quality of environment is lowering, that means it is degrading. So the reason behind is environmental degradation. So before knowing the causes of environmental degradation, let us first understand what is environmental degradation. See, environmental degradation, as I am going to discuss meaning of environmental degradation, classification is also there, and then is your causes and consequences. So firstly, we have to know about environmental degradation, because after that only we can understand the causes. So environmental degradation is a series of actions through which we weaken or harm the natural environment. We reduce its biological diversity. ये क्या करते हैं, हम वो एक्शंस हैं जो हम करके हार्म करते हैं कहीं ना कहीं नेचुरल इन्वायरमेंट को. बहुत सारे एक्शंस है. फायर, फॉरेस्ट फायर है आपका, इंडस्ट्रीज से धुआं जो पॉल्यूशन है उसका कारण, लैंड डैमेज है उसका कारण, बहुत सारे कारण है. सो जो है इट मीन्स ओवरऑल लोअरिंग ऑफ environment qualities because of adverse changes brought in by human activities in the basic structure of the components of the environment to such an extent that these adverse changes affect the adversely all biological community in general and human society. So जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को अगर हम दूसरी तरह से कहें तो ये क्या कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं वाटर, एयर, सॉइल की, और इससे क्या हो रहा है, ये चैलेंज बन रहा है हमारे लिए. जैसे कि आप जानते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वी आर वेरी फार इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन आर मेजर challenges in our country, and health issues are there, diseases are there, primary issues ये हमारे हैं. सो अर्बन सोसाइटी में मेजर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट जो है मैन मेड है. सो वो भी एक कारण है हमारा जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को. नो, लेट अस क्लासीफाई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. देयर आर सब टू कैटेगरीज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन and second is hazards. Environmental pollution means a lowering of the quality of environment at local level caused by human activities for exploitation. So जैसे कि हमारे पास इसमें 3 सब कैटेगरीज हैं, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और आप इसको कह सकते हो लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, और वाटर डिग्रेडेशन, और एयर डिग्रेडेशन. सो लैंड पोल्यूशन जो है आपका, हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कह लो, या ग्रेजिंग और एनिमल ग्रेजिंग की वजह से आप कह लो, हम फॉरेस्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम हार्म कर रहे हैं फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को. तो उसकी वजह से क्या है, लैंड पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. सेकेंड इज़ जो एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन जो है वो गैसेस जो हैं इंडस्ट्रीज़ की, आप देख सकते हो इंडस्ट्री का वेस्ट जो है वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है. इंडस्ट्री की जो गैसेस हैं वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं. पॉलन्स हो गया, वाइल्ड जब हम फायर लगाते हैं जंगल में वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक पोल्यूशन क्रिएट करता है. सो एयर पोल्यूशन भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है. देन इज़ योर एयर पोल्यूशन के बाद आपका वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन जो है, आप देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट, मैंने आपको पहले ही कह दिया, समटाइम लैंडफिल्स लीकेज होती हैं, जो जितना भी कचरा वचरा हम डालते हैं एक जगह पर, वेस्ट इंडस्ट्रीज़ का हो, घर का हो, तो वो पोल्यूट करता है और डिस्ट्रॉय करता है इस सब को, और वो कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूट करता है. सेकेंड इज़ योर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में हज़ार्ड्स. नेचुरल होते हैं, नेचुरल में आपके 3 सब कैटेगरी हैं. टेरेस्ट्रियल हज़ार्ड्स वो होते हैं जैसे लैंड सरफेस पे जो हो रहे हैं,
जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक करप्शन हो गया। एटमॉस्फेरिक हज़ार्ड जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में होते हैं, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गया, टाइफोन्स हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गया। क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेरिक हज़ार्ड्स होते हैं जो कि सर्टेन एटमॉस्फेयर इम्बैलेंस से होते हैं, जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट। मैन इंड्यूस्ड जो आपके हज़ार्ड्स हैं वो फिजिकल मैन इंड्यूस्ड, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, लार्ज लैंडस्लाइड्स हो गया। देन इज़ योर केमिकल न्यूक्लियर हज़ार्ड हो गया, जैसे भोपाल गैस हज़ार्ड था एक, फायर इन गैस सिलेंडर्स हो गया, गोडाउन्स में हो गया। बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स हो गया, एक्सप्लोजन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हंटिंग हो गया, इंक्रीज इन टॉक्सिक एलिमेंट्स हो गया। ये सारे कारण हैं आपके, कहीं ना कहीं आपके जो हज़ार्ड्स हैं ये आपके इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन है उसकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्या क्या कारण हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉज कि हमारा पहला कारण जो है लैंड डैमेज या लैंड डिस्टर्बेंस कर लिए। जब हम डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट को कट करते हैं तो वो लैंड को डैमेज करता है, उसकी वजह से कई बारी जो फ्लड्स वैसे नेचुरल डिज़ास्टर है बट स्टिल कभी कभी वो भी एक कारण बन जाता है। आपके कई रेप्टाइल जो हैं वॉश अवे हो जाते हैं। देन पॉल्यूशन इज़ अगेन इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम कॉज, बिकॉज वॉट एवर फॉर्म it is harmful to the environment. Overpopulation is again there, rise in population जिसको rapid growth is putting strain on our natural sources basically. So it is resulting in degradation of our environment. And because of science and medical facility क्या हो रहा है, mortality rate भी decrease हो रहा है, मर भी कम रहे हैं, और which in return क्या हो रहा है, लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ बिग इशू फॉर अस। उससे भी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है बिकॉज रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। लैंडफिल्स जो हैं दे pollute and destroy the beauty of city as they come within the city due to a large amount of waste which is generated by industries हो गया, आपका house waste हो गया, hospital waste हो गया, and it produces foul smell also and it cause environmental degradation. This is also a main cause. Then deforestation, as I have told, in land disturbances, it is again directly linked with land disturbance. So use of forest land for agriculture, for home household things, for animal grazing, for fuel, ये जो है एक cause है डिफॉरेस्टेशन का। और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग जो है हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। then is your urbanization, because we are changing forest area into urban areas, so उसके लिए हम roads बना रहे हैं, forest को cut कर रहे हैं, so that is again a cause of environmental degradation. then is your industrialization, again it's also directly linked with all these points. so industrialization के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं जगहों को और ट्रीज को कट कर रहे हैं, so वो भी एक प्रॉब्लम बन रहा है। then is your increase in energy consumption, अब हम एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। आप देखें एनर्जी कंजम्पशन कैसे हो रहा है, हम जो है जितना भी हमने चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनको हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी जो है चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, इनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन गया हमारे लिए कि हम एनर्जी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जितना नहीं करना चाहिए, उसलिए इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में हम जो हैं जैसे कंप्यूटर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सो ये टेक्नो ट्रैश बन गए हैं जो कि ऑल सॉर्ट ऑफ हज़ार्डियस मटीरियल है इनके साथ कंटेन कर रहे हैं ये, और विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। देन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन जो है ऑफ मैन, हम इकोनॉमिकली साउंड होने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ प्लांट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेचुरल कॉजेज़ में आपका आ गया स्टॉर्म्स, टाइडल वेव्स, इसमें वी आर हेल्पफुल बिकॉज वी आर नॉट डूइंग वी कैन नॉट ब्लेम ह्यूमन फॉर दिस। सो अर्थ इटसेल्फ इज कॉजिंग इकोलॉजिकल इशूज़ एंड लीडिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। नो कम्स कॉन्सिक्वेंसेज, इनका इम्पैक्ट क्या है या इसका इफेक्ट क्या है। सो पहला इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है। आजकल आप देखते हो नमूनिया हो गया, अस्थमा हो गया, COPD हो गया, सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हो रही हैं ज़्यादा और अफेक्ट कर रही हैं हमें बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। देन इज़ योर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एज वी नो दैट वी आर हैविंग वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ। सो जो है वो भी हमारा ख़त्म हो रहा है बिकॉज डिफॉरेस्टेशन है, तो जो कुछ स्पीशीज़ तो ख़त्म ही हो गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है इसकी वजह से,
से और ओवर पॉपुलेशन इसका मेन कारण है। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है अगेन प्रोटेक्ट करता है हमें ओजोन जो है लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, और प्रेजेंस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की एटमॉस्फेयर में जो है इज कॉजिंग ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, तो इसका कारण भी हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं। सो देन इज़ योर फेमिन। फेमिन इज़ लाइक अ वाइड स्प्रेड स्कैरसिटी ऑफ फूड होती है, जो कि बड़े सारे कारण हो सकते हैं, जैसे वॉर हो गया, प्राइस में हाइक हो गया, वेदर कंडीशंस हो गई, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, कई लोगों का खाना ख़त्म हो गया, पॉवर्टी भी एक लीड कॉज है इसका। तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ तो रहे ही नहीं है क्योंकि आप देखो हमने बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं ख़त्म हो गए हैं, जैसे पोलर बियर हो गया, फ्रॉग्स हो गया, आपने बड़े कम फ्रॉग दिखने को मिलते हैं, पेंगुइन्स कम हो गए हैं। तो ये सारा कारण इसलिए है क्योंकि वेदर क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है और फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये रहें कहाँ। देन एक्यूट एंड क्रॉनिक मेडिकल इलनेस जो होती है, लाइक आप देखो पहले भी हमने डिस्कस किया इसको, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया, लंग कैंसर हो गया, बहुत सारी और प्रॉब्लम तो ये इसके साथ होती हैं। सो जैसे कि लॉस फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट जो है एक सेटबैक है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। जब आपके पास होगा ही नहीं कुछ दिखाने का नेचुरल, तो आप टूरिस्ट क्यों आएंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हो रहा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं है, रिस्टोरेशन ऑफ ग्रीन कवर नहीं है, क्लीनिंग अप ऑफ अदर थिंग्स नहीं है, तो फिर हम लोगों का ऑटोमेटिकली ये भी खत्म हो रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ environmental degradation. I hope you have understood. Stay tuned with me for my next videos. I will be discussing unit 2 of environmental education in my next video. Thank you so much.